Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. In our today's video, we are going to discuss about an important classification system of the seed plants that are generally called the phanerogames. So that important classification system was proposed by the two scientists. So that is called Bentham and Hooker's classification system. This classification system is mainly natural. Classification system के बहुत सारे type होते हैं like phylogenetic classification system which is based on the evolution, the phylogenetic one. Some are artificial classification system, which are only based on the outer morphology, which are based on the appearance or the morphology. And the most common are the natural, although phylogenetic are also most common these days. But among the natural classification system, natural means in which we study the overall characters, which may include the cellular studies, the molecular studies like at the genetic level, the genetical studies, and also the morphological ones. The morphological may even also include some anatomical characters also, etc. So the natural classification systems are based on the various character, not on a particular character. Like phylogenetic system is based on evolution. The artificial classification system are based on the only morphology, but natural are the most abundant type of classification system which are based on many characters. So among the natural classification system, the most common is the Bentham and Hooker's classification system, which are proposed for the seed plants, which are called the phanerogames. The lower plants, which are also called cryptogames, which does not produce seeds. Cryptogame जो seed produce नहीं करते like algae, bryo and pteridophyte. So this classification system is not applicable for them. That particular classification system which we are going to study, that is Bentham and Hooker's classification system, it is that we will study only for the seed plants, which are also called the phanerogames. Okay, the seed producing plants. So talking about some important points about this Bentham and Hooker classification system. Of course, as the name suggests, it was proposed by two scientists. One are the Joseph Dalton, Sir J.D. Hooker, the Joseph Dalton Hooker, and another is the George Bentham. So upon their name, the two scientists Joseph Dalton Hooker and George Bentham, this classification was overall named as Bentham and Hooker system of classification. Again, I am writing it is the most important classification system which is of natural classification type. So it is a natural classification system because it was based on overall similarities of their cellular, molecular, genetic और morphological anatomical characters. सभी चीजों पर ये बेस होते हैं natural system और उसमें भी सबसे common जो है वो Bentham and Hooker system of classification है. Both of these scientists they worked during early 19th century and during around 1800 to 1880 their active years, although the life cycle of them were 1800 to 1884. George Bentham was died in 1884, I should write there, whereas the Dalton lived some longer as compared to George Bentham. They survived up to 1911. So their common era was during, they are most active during 1850 to 1880. They published a book in 3 volumes, Genera Plantarum. This book or this volume was published in 3 volumes, this book, during 1862 to 1883. So this classification system also was also proposed in this book or this publication, which was having 3 volumes. So if I talk about the exact date that was given for the Bentham and Hooker classification system, so that lies between 1862 to 1883 during their work upon their book Genera Plantarum. Their publication was based on the studies of, or their classification system was based on the studies of A.P. Dickendall. In my early lectures about the plant taxonomy, I have discussed about the contribution of A.P. Dickendall, the Augustine Pyramus, Dickendall, and Lindley. These are the two scientists. On their work, this classification system was almost based and having so many similarities, or moreover, we can say that it is a kind of modification of the work of these two scientists.
So it is a modified or it is based upon the studies of Epidigandol and Lindley. Both of these scientists are associated with the Royal Botanical Garden. The most famous botanical garden and the largest botanical garden in the world, the Royal Botanical Garden, Kew. So they both are associated with them. The Joseph Dalton Hooker, although they have visited so many countries and even they have written the flora of British India. During 1870s to 1897. So Dalton, the Joseph Dalton Hooker, or we can only say the Hooker. Hooker have also worked for our India. That time we are under the British empowerment. So the flora of British India was also written by the Joseph Dalton Hooker. George Bentham was a self-botanist. They have collected so many information on their own. They were self-trained botanists. So they have contributed a lot. They have also written flora or the manuals of so many families, manuals of many families, as well as flora of various places. फ्लोरा क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का वहां पर पाए जाने वाले सारे प्लांट्स की लिस्टिंग करना कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं, वो उसका फ्लोरा कहलाता है. ठीक है. रियल कलेक्शन जो होता है वो हर्बेरियम की फॉर्म में हम कर सकते हैं, बट ओनली अगर केवल हम एनलिस्टिंग करें, ये लिखे कि कौन कौन से प्लांट पाए जाते हैं और कौन सी वेराइटीज हैं, तो वो क्या कहलाता है? फ्लोरा कहलाता है. सिमिलरली जो जॉर्ज बेंथम रहे, उन्होंने भी बहुत से फ्लोरा लिखे. ठीक है. तो उन्होंने फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश या ब्रिटेन का भी उस टाइम पर फ्लोरा लिखा था, एंड फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया दैट वाज रिटन बाय द हुकर. So these are some information regarding the background of George Bentham as well as the Joseph Dalton Hooker. Moreover, we are studying the classification system that was proposed by these two scientists. So if I talk about a certain date, so that particular classification system is published in this book, Genera Plantrum, during 1862 to 1883 in 3 volumes. So now just come to the classification system. So overall phanerogams or the seed plants, phanerogams we should know. Phanerogam seed plants को बोलते हैं. Cryptogam non seed plants को बोलते हैं, जिनमें सीड नहीं बनते, like algae, brio and pteridophyte. सीड केवल बनते हैं जिम्नो में और एंजियोस्पर्म में. Okay, so they have described the 7569 genera or genus. The plural for genus is genera. So at that time during 1862 to 1883, they gives the idea of 7569 genus and 97,205 species. Because species is a small unit, so one genus may have several species, 2 or more than 2 species. So genus is a large unit and species is comparatively a smaller unit. So they have described about the 97,205 species at that time, included in the 7,569 genera, and they are collectively in 202 families. So that much species of plant they have described in their classification system, which is the Bentham and Hooker system of classification. So we could remember that 202 families, 97,205 species in the 7,569 genera. 7,569 जीनस में उन्होंने 97,205 स्पीसीज के बारे में बताया और टोटल 202 फैमिलीज के बारे में उन्होंने बताया. So we will study now about the divisions that they have divided the phanerogams in 3 classes, or how many classes that we will study. So mainly they have divided the phanerogams in 3 classes. I should write over there. This information I could write at the edge. Okay, so 7,569 genera, 97,205 species, and 202 families. So we are overall taking the phanerogams. They have divided the phanerogams into 3 classes.
So those three classes were, they have placed monocot and dicotyledons in a separate class. They does not give a name angiosperm. So firstly, the first class was dicotyledony. You can write dicotyledons, or we can also write dicotyledony like this. Okay. So first class was dicotyledons. The class third was monocotyledons or monocotyledony. I should write AE there. So you can write dicotyledony as well as monocotyledons instead of these two also. And one more thing, they have placed in between the gymnosperms. They have placed in between gymnosperms. Between what? Between dicotyledons and monocotyledons. देखिए सीड प्लांट्स एंजियोस्पर्म होते हैं एंड जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, बट एंजियोस्पर्म्स को उन्होंने सेपरेटली डायकॉट अलग क्लास दी, मोनोकॉट अलग क्लास दी. इट्स अ वेरी बेटर क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑल्दो, बट उन्होंने बीच में जिम्नोस्पर्म्स को प्लेस कर दिया. दे वुड डू लाइक दैट. क्लास 1 जिम्नोस्पर्म हो सकती थी. ये सारी चीजें हम मेरिट डीमेरिट में भी डिस्कस करेंगे. आफ्टर दिस वीडियो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम. इस वीडियो में हम केवल ओवरऑल क्लासिफिकेशन सिस्टम और कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे फैमिलीज को नाम दिया गया था या कैसे सीरीज को नाम दिया गया था. इसमें जो सीरीज आएंगे फर्दर. तो 3 क्लासेस होते हैं, डायकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स और मोनोकोटिलिडन्स. ठीक है. फिर इनके अंदर सब क्लासेस बताए गए. तो 3 सब क्लास बताए गए किसके अंदर? मेनली डायकोटिलिडन्स के अंदर. तो इसमें भी 3 सब क्लासेस उन्होंने बताई. डायकोटिलिडनी के अंदर सब क्लास हैं, बाकी क्लासेस में सब क्लास नहीं थे. तो यहाँ 3 सब क्लासेस होते हैं. पॉलीपेटली, ठीक है. नेक्स्ट इज गैमोपेटली, एंड लास्ट वन वाज मोनोक्लेमाइडी. इनके नाम कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स के बेसिस पर रखे गए थे. 3 क्लासेस हैं, डायकोटिलिडन्स, जिम्नोस्पर्म्स, मोनोकोटिलिडन. इंडिविजुअली क्लास 1 पर हम आ गए डायकोटिलिडन्स. इसमें 3 सब क्लासेस बताई गई, पॉलीपेटली, गैमोपेटली एंड मोनोक्लेमाइडी. ठीक है. पॉलीपेटली का मतलब है कि पेटल्स जो हैं वो फ्री हैं. इसका मतलब सेपल पेटल दोनों हैं और पेटल्स जो हैं वो फ्री हैं. ये हम जनरल फ्लोरल फॉर्मूला या फ्लोरल कैरेक्टर्स में भी डिस्कस करते हैं. पॉली का मतलब होता है फ्री, पॉली पेटलस, पेटल्स फ्री. गैमोपेटलस का मतलब पेटल्स फ्यूज, पेटल्स आपस में फ्यूज थे. यानी कैलेक्स कोरोला अलग अलग है, सेपल पेटल अलग है आपस में, लेकिन फ्यूज थे. और मोनोक्लेमाइडी में क्या होता है कि सेपल और पेटल जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. ठीक है. फ्लावर ए पेटल्स, पेटल्स नहीं होते. कभी कभी पेरियंथ प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी. पेरियंथ में प्रेजेंट. अब पेरियंथ क्या कंडीशन होती है ये मैंने फ्लोरल टर्म्स में बताया हुआ है, यहाँ मैं बेसिक बता देता हूँ. जब आप सेपल्स और पेटल्स को डिफरेंशिएट ना कर पाए, अनडिफरेंशिएटेड रहे दोनों, यानी हमें ये नहीं पता चले कि कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है, तब क्या कहलाते हैं वो कंडीशन? पेरियंथ कहलाते हैं. U4BSc में देखने को मिलती है पेरियंथ कंडीशन. सो 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया क्लास डायकोटिलिडन्स को. ठीक है. इन 3 सब क्लासेस को भी अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. उसके अलावा क्लास 2 जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कोई सब क्लास नहीं थी, केवल फैमिलीज थी या 3 ऑर्डर थे. ठीक है. मोनोकोटिलिडन के अंदर भी सब क्लासेस नहीं थी, 7 सीरीज और 34 फैमिलीज थे. ये एक डाटा है जो आपको याद ही रखना पड़ेगा. देखिए 3 ऑर्डर है, फिर उनमें सेवरल फैमिलीज हैं. क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स हमें नहीं पढ़ना, केवल एंजियोस्पर्म्स के लिए पढ़ते हैं हम टैक्सोनॉमी में. जिम्नोस्पर्म के लिए सेपरेटली क्लासिफिकेशन सिस्टम है. ठीक है, बेंथम एंड हुकर का. और क्लास 1 डायकोटिलिडन्स, ये ओवरऑल हम सीड प्लांट्स का पढ़ रहे हैं, बट मेनली फोकस्ड ऑन दी एंजियोस्पर्म प्लांट्स दैट आर डायकोटिलिडन्स एंड मोनोकोटिलिडन्स. सो डायकोटिलिडन्स की अगर बात करें तो डायकोटिलिडन के अंदर भी उन्होंने 14 सीरीज, 25 ऑर्डर और 165 families बताएं. So you can see that most of the families
are included in the dicotyledons as well as monocotyledons. अगर क्लास 1 और क्लास 3 की फैमिलीज का टोटल करें, इट इज अराउंड 199. इट मींस कि टोटल जो है ओनली 3 फैमिलीज, 3 ऑर्डर या 3 फैमिलीज, बिकॉज ईच ऑफ द ऑर्डर इज हैविंग ओनली 1 फैमिली. तो यहाँ हम सेवरल की जगह 3 फैमिलीज ही लिख सकते हैं. तो टोटल 3 ही फैमिली है किसके अंदर, जिम्नोस्पर्म्स में. वो भी जो है आपके मेनली ऑलरेडी, अगर आपने जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रखे हो तो नीटेल्स एंड साइकेडेल्स एंड कॉनिफरेल्स, यही ऑर्डर होते हैं. ठीक है. साइकस, कॉनिफरेल्स में मेनली पाइनस होता है, साइकेडेल्स में मेनली साइकस होता है, नीटेल्स में हम नीटम या इफेड्रा भी इंक्लूड करते हैं. कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम में इफेड्रा के लिए एक अलग ऑर्डर है जिसको इफेड्रल्स भी बोल देते हैं. तो इस तरह से 3 फैमिली रहते हैं उसमें. तो I should write over there the 3 families which are included in the gymnosperms. One are the coniferales. Whenever we are writing the ales, it means these are the orders. Another are the cycadales, and another are the nettales. So that is how the complete classification system is now written. तो हमने gymnosperms के लिए भी लिख दिए हैं 3 ऑर्डर. टोटल 202 फैमिलीज थे, 34 फैमिलीज मोनोकोटिलिडन क्लास में और 165 families dicotyledon में. It means the largest class is dicotyledons because it is having so many series as well as the much amount of the families as compared to other ones. हम बात करते हैं पॉलीपेटली फैमिली की, पॉलीपेटली सब क्लास की, नॉट फैमिली. सो क्लास 1 में डायकोटिलिडन्स में टोटल 14 सीरीज हैं. 3 सीरीज होते हैं पॉलीपेटली में, 3 सीरीज होते हैं गैमोपेटली में, और बचे हुए 8 सीरीज होते हैं मोनोक्लेमाइडी में. तो हम केवल सीरीज तक लिख रहे हैं. मैं कुछ बोलता रहूंगा फैमिलीज के एग्जांपल, बट फैमिलीज तक या ऑर्डर्स तक हमने नहीं डिस्कस करना. ओनली सीरीज तक क्लासिफिकेशन सिस्टम हम डिस्कस करते हैं. तो पॉलीपेटली में पहली सीरीज जो होती है वो होती है थैलेमीफ्लोरी. नेक्स्ट सीरीज जो होती है वो होती है डिस्कीफ्लोरी. एंड लास्ट वन सीरीज इज कैल्सीफ्लोरी. देखिए नाम तो याद करने पड़ते हैं पर निमोनिक्स होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग निमोनिक्स बदल भी सकते हैं. इसको टीडीसी बोलते हैं. ठीक है. जो पहली सब क्लास है पॉलीपेटली, उसमें थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी बोलते हैं. पॉलीपेटली की खासियत यह है कि पेटल्स फ्री है. तो देखिए टीसीडी, द कोरोला डिफरेंशिएटेड. कोरोला यानी पेटल्स की, पेटल्स जो है वो डिफरेंशिएटेड है. तो टीसीडी. ठीक है. या आप इसको कह सकते हैं द डिफरेंशिएटेड कोरोला, क्योंकि हमने इस सीक्वेंस में लिखा है. कुछ बुक्स में कैल्सीफ्लोरी ऊपर देते हैं, कुछ में डिस्कीफ्लोरी ऊपर दिया होता है. तो स्टैंडर्डली जो मैं रेफर कर रहा हूँ, श्री गुरुचरण सिंह जी की एक बुक है, और वो जो है अच्छे प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी, तो वो मैं रेफर कर रहा हूँ, गुरुचरण सिंह. उस बुक में डिस्कीफ्लोरी जो है वो सेकंड पोजीशन पर दिया हुआ है. तो हम निमोनिक्स याद रखेंगे, द डिफरेंशिएटेड कोरोला. ओके. तो टी डी सी, डिफरेंशिएटेड कोरोला का मतलब पेटल्स अलग अलग है. तो क्या पता चलता है, पॉलीपेटली. पॉलीपेटली एक सब क्लास है जिसके अंदर पेटल्स अलग अलग हैं. तो ये निमोनिक्स आप याद रख सकते हैं, द डिफरेंशिएटेड कोरोला, टीडीसी. अब टीडीसी में आपको नाम याद रखना है, थैलेमीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी, कैल्सीफ्लोरी. इनके कुछ सर्टेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर ये नाम रखे गए. ठीक है. जैसे थैलेमीफ्लोरी के अंदर क्या होता है, फ्लावर जो होते हैं हाइपोगाइनस होते हैं. और ओवरी में कोई डिस्क प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है. नो डिस्क प्रेजेंट, यानी कोई स्पेशल केस नहीं है कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो वो प्रेजेंट हो. फ्लावर इसके हाइपोगाइनस है. स्टेमन्स बहुत सारे हो सकते हैं. थैलेमीफ्लोरी में कई ऑर्डर आते हैं जैसे कि गटिफरेल्स, रेनेल्स, ठीक है, गोलिनेसी. तो ये इतने हमें याद नहीं रखने, हमें केवल सीरीज याद रखनी है. सो दिस इज द फर्स्ट सीरीज थैलेमीफ्लोरी. सेकंड सीरीज होती है डिस्कीफ्लोरी. इसमें डिस्क प्रेजेंट होती है ओवरी के नीचे, डिस्क प्रेजेंट बिलो दी ओवरी. एक खासियत है ऐसे फ्लावर जिनकी ओवरी में क्या हो, डिस्क प्रेजेंट हो. इसके भी फ्लावर जो होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं. हाइपोगाइनस का मतलब है ओवरी सुपीरियर होती है. ठीक है. और पेटल्स तो इनके अंदर कॉमन है. पेटल क्या कॉमन है कि पेटल्स इन तीनों सीरीज में फ्री है. फिर आती है कैल्सीफ्लोरी. कैल्सीफ्लोरी में जो फ्लावर होते हैं वो एपिगाइनस या पेरीगाइनस होते हैं. एपिगाइनस और पेरीगाइनस फ्लावर. ओके. और उसके अलावा एक खासियत और होती है कि इनमें अम्बल इन्फ्लोरेसेंस होती है. ठीक है. कुछ ऑर्डर्स में इसमें अम्बल इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है.
सभी फैमिलीज में नहीं, बट सर्टेन फैमिलीज में अम्बल इन्फ्लोरेसेंस भी पाई जाती है। तो 3 तरह के फ्लावर है, पर्टिकुलरली ओवरी के बेसिस पर इनको क्लासिफाई किया गया है, और तीनों में कॉमन क्या है कि पेटल्स जो है वो फ्री हैं। तो डायाकॉट क्लास की ऐसी सब क्लास जिसमें पेटल्स फ्री हो सब में। मान लीजिए ये फ्लावर है, ये उसका एक पेटल है, ये दूसरा पेटल है, ये तीसरा पेटल है, ये फ्यूज नहीं है। अगर फ्यूज होते तो इस तरह से होते, जैसे धतूरा आपने देखा होगा, ठीक है, उसके पेटल्स फ्यूज होते हैं, इस तरह से ट्यूब बनाए होते हैं। तो वो ट्यूब सेपरेट नहीं कर पाती पेटल्स को, पेटल्स आपस में चिपके रहते हैं, आप अलग अलग नहीं कर सकते पेटल्स को, तो वो गैमोपेटलस कंडीशन कहलाती। इस क्लास में, इस सब क्लास में, पॉलीपेटली में, निमोनिक्स मैंने बता दिया TDC, द डिफरेंशिएटेड कोरोला। इससे आपको याद रह जाएगा कि हमें TDC लिखना है, ठीक है। फिर आती है गैमोपेटली, उसमें भी 3 सब सीरीज है, उनको, इसको मैं रफ कर रहा हूं अभी ताकि उन तीनों को भी मैं लिख सकूं। ये कैरेक्टर्स आप साथ ही साथ लिख सकते हैं, या नोट्स के लिए मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल सेंड यू द नोट्स। सो नेक्स्ट है गैमोपेटली। गैमोपेटली का मतलब है पेटल्स फ्यूज है, तो इसके लिए भी एक निमोनिक्स होता है, इन्हें भी, इन हे भी, ठीक है। इसका निमोनिक्स है इन्हें भी, हालांकि ये फ्यूज पेटल से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इन्हें भी का मतलब है इनफेरी, ये सीरीज, इसमें भी 3 सीरीज होंगी, इनफेरी, हेट्रोमेरी। देखिए नाम आपको याद करने पड़ेंगे, स्टार्ट कहां से होता है, किसमें क्या, उसके लिए निमोनिक्स होती है, इन हे भी। और बाई कार्पेलेटिंग, बाई कार्पेलेट, बाई कार्पेलेट, ठीक है। यहां भी नाम से ही पता चलता है। देखिए तीनों में कॉमन क्या है कि गैमोपेटलस है, इसका मतलब पेटल्स फ्यूज है, ये दूसरी सब क्लास है, ठीक है। इनफेरी का मतलब है ओवरी इंफीरियर है, तो यहाँ एक कैरेक्टर हम लिख देते हैं कि ओवरी इंफीरियर है। बाकी पेटल्स की बात करें तो पेटल्स तो फ्यूज है। हेट्रोमेरी की बात करें तो ओवरी तो सुपीरियर होती है, स्टेमन जो होते हैं 2 होरल में होते हैं, ठीक है। ओवरी, हेट्रोमेरी की हम बात कर रहे हैं, ओवरी सुपीरियर है। इनफेरी में ओवरी इंफीरियर थी। आप केवल इतना भी लिखकर छोड़ सकते हैं हेट्रोमेरी में कि यहाँ खासियत क्या है कि ओवरी सुपीरियर है और कार्पल्स 2 से ज्यादा है, कार्पल्स मोर देन 2, इसलिए हेट्रोमेरी है। और बाई कार्पलेटिव में क्या होता है, ओवरी सुपीरियर है और कार्पल्स एग्जैक्टली 2 है। देखिए कार्पल 2 होने का मतलब ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर चैम्बर्स जो होते हैं जनरली उनको लॉक्यूल्स कहते हैं, और स्पोरोफिल्स को कार्पल कहते हैं, जहां स्पोर कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो होती है। ये 1 और 2, ये 2 कार्पल है। इस तरह से ओवरी जब होती है तो 3 कार्पल होते हैं। तो जनरली जितने चैम्बर होते हैं उतने ही कार्पल होते हैं। कभी कभी क्या होता है, चैम्बर एक होता है और कार्पल ज्यादा होते हैं। मान लीजिए ये 3 कार्पल है, 1 2 3, और चैम्बर अंदर एक ही है, तो जनरली जितने चैम्बर उतने ही कार्पल, बट ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कार्पल ज्यादा होते हैं, चैम्बर एक ही होता है, ठीक है। यूनिलॉक्यूलर ओवरी में भी मल्टी कार्पल कंडीशन पाई जा सकती है। तो एग्जैक्टली अगर हम याद रखना चाहें तो दूसरी सब क्लास गैमोपेटली, वहां पेटल्स फ्यूज हैं। इनफेरी इंफीरियर ओवरी, हेट्रोमेरी सुपीरियर ओवरी बट कार्पल्स मोर देन 2 हेट्रो, और बाई कार्पलेट में एग्जैक्टली 2 कार्पल होते हैं, ओवरी सुपीरियर है और पेटल्स फ्यूज हैं। तो इसका निमोनिक्स है इन्हें भी, ठीक है। उसका था TDC, द डिफरेंशिएटेड कोरोला। थर्ड सब क्लास जो है वो थोड़ी लार्ज सब क्लास है, जिसके अंदर 8 सीरीज है टोटल, ठीक है। 8 सीरीज के लिए मैंने एक निमोनिक्स बनाई हुई है, आप अपनी निमोनिक्स भी बना सकते हैं। तो उसमें ये होता है कि कैलकाटा सी, मुझे, मेरे, मुंबई, दिल्ली और यूनिवर्सिटी से ऑर्डिनरी लगा। यहाँ टोटल 8 यहाँ आ नहीं पा रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर मैंने साथ ही साथ लिखे हैं, आप रिकॉर्डिंग में बार बार कैरेक्टर देखते रहना। अभी मैंने रफ कर दिए इनफेरिया सबके, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर प्लेस नहीं है, मैं दोबारा ले देता हूँ। यहाँ तो नीटल्स का थर्ड, ठीक है। यहाँ जो थर्ड सब क्लास थी दैट वाज, आई शुड राइट ओवर देयर, थर्ड सब क्लास में यहाँ लिख रहा हूँ मोनोक्लेमाइडी। देखिए मोनोक्लेमाइडी की क्या खासियत थी कि वहां पेटल्स या सेपल्स थे ही नहीं, ठीक है। ए पेटल्स था, या मैंने पेरियंथ वाले कंडीशन बताई थी। तो जो डायाकॉट की 3 सब क्लास है वो मेनली पेटल्स के बेस पर डिवाइडेड है, या तो पेटल फ्री है, या पेटल फ्यूज है, गैमोपेटली, या पेटल है ही नहीं, तो वो है मोनोक्लेमाइडी। उसमें 8 सब सीरीज है, 8 सब सीरीज को मैं निमोनिक्स बता रहा हूं आपको, आप अपनी निमोनिक्स भी बता सकते हैं। कैलकाटा, मुझे, मेरे,
मुंबई, दिल्ली और, ठीक है, ए के लिए हम AUR और वो लिख रहे हैं, और यूनिवर्सिटी, मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं, से ऑर्डिनरी लगा। अब मैं इनके नाम लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा कि निमोनिक्स कैसे बनी है। तो यहाँ पहली जो सब सीरीज होती है वो होती है कर्व एम्ब्री। देखिए जब हम कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें समझने का ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से निमोनिक्स बना सकते हैं, और मेनली तो आपने याद रखना ही है, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा। कर्व एम्ब्री, उसके अलावा मल्टी ओव्यूलेट, मल्टी ओव्यूलेट एक्विटी, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियल, जीवन पहले पानी में आया था फिर जमीन पर, तो पहले एक्वेटिक आएगा फिर टेरेस्ट्रियल, ठीक है। फिर माइक्रो एम्ब्रियो, माइक्रो एम्ब्री, उसके बाद डेफिनिल्स, ठीक है, उसके बाद आपका एक लमाइडोस्पोरी, उसके बाद यूनिसेक्सुअल्स, और फिर ऑर्डिनस एनिमलाई। देखिए इस तरह से 14 सीरीज खत्म होती है। 14 सीरीज, 3 पॉलीपेटली में, 3 गैमोपेटली में, और 3 और 8 सब क्लासेस मोनोक्लेमाइडी में। ये 8 सीरीज हैं, तो टोटल 8 + 3 + 3 14 सीरीज हमने लिख ली। सारे ऑर्डर और सारी 165 फैमिली हम नहीं लिख सकते, हमें एटलीस्ट 14 सीरीज दिखाने थे। तो डायाकोटिलिडनली जो एक क्लास है, उस क्लास में 3 सब क्लास थे, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी। हर एक सब क्लास में 3 + 3 + 8, 3 + 3 + 8 सीरीज थे, वो हमने दिखाए हैं। इनके भी मैं कैरेक्टर लिख देता हूं, फिर उसको रफ करूंगा ताकि नेक्स्ट हम प्रोसीड कर सके। कर्व एम्ब्रियो का मतलब होता है एम्ब्रियो जो है वो कॉइल्ड है, कर्व्ड है, ठीक है, तो एम्ब्रियो कॉइल्ड, जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है। ऐसे डायकॉट प्लांट जिनमें पेटल भी नहीं है और उनका एम्ब्रियो कॉइल्ड शेप का है, ठीक है, और जनरली एक ही कार्पल होता है या ओव्यूल एक ही होता है, वो कहलाते हैं कर्व एम्ब्रियो, ठीक है। मल्टी ओव्यूल्यूट एक्विटी का मतलब है ओव्यूल्स बहुत सारे हैं और एक्वेटिक प्लांट है। ओव्यूल्स मैनी, बहुत सारे ओव्यूल पाए जा रहे हैं ओवरी में, और एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है। ओव्यूल्स मैनी टेरेस्ट्रियल प्लांट है। देखिए ओव्यूल्स मैनी तो यहां भी हो सकते थे, थैलेमी फ्लोरी में भी, लेकिन थैलेमी फ्लोरी कैसे अलग है मोनोक्लेमाइडी से, कि थैलेमी फ्लोरी में पेटल्स हैं और फ्री हैं, जबकि मोनोक्लेमाइडी में पेटल्स नहीं है, तो फ्री और फ्यूज का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो मल्टी ओव्यूल्स मैनी टेरेस्ट्रियल। माइक्रो एम्ब्रियो का मतलब है एम्ब्रियो छोटा है, तो स्मॉल एम्ब्रियो, अदर फैमिलीज के कंपैरिजन में साइज जो है वो स्मॉल है। डेफिनिल्स नेम हालांकि थोड़ा सजेस्ट नहीं करता, यहाँ क्या होता है कि डेफिनिल्स एक ऑर्डर होता है, उसमें ओव्यूल भी एक होता है और पर्टिकुलरली कार्पल भी एक होता है, ठीक है, यानी एक ही ओव्यूल, ये मान लीजिए कार्पल है, सिंगल कार्पल, और इसके अंदर एक ही ओव्यूल है। तो ऐसे डायकॉट प्लांट जिनमें सिंगल ओव्यूल हो, सिंगल कार्पल हो, और वो ए पेटलस हो, उनके अंदर पेटल ना हो, वो डेफिनिल्स होते हैं। इसमें डेफिनिल्स ऑर्डर ही आता है मेनली, ठीक है। एक क्लेमाइडोस्पोरी में क्या होता है, ओवरी इंफीरियर होती है, यूनिलॉक्यूलर होती है, और ओव्यूल्स जो होते हैं वो 1 से 3 हो सकते हैं। तो इंफीरियर ओवरी होती है इसमें, ओव्यूल्स मैनी, मेनली 1 to 3, और ओवरी जो होती है वो यूनिलॉक्यूलर होती है, एक ही चैम्बर होता है। यूनिसेक्सुअल्स में आप जानते हैं फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे। ऐसे डायकॉट प्लांट जिनमें पेटल्स नहीं है और फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, यानी एक तो पेटल होल नहीं है, दूसरा फिर भी इनकम्प्लीट फ्लावर है, यानी क्या है, आपके सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट नहीं है, केवल एक सेक्स ऑर्गन है। और ऑर्डिनस एनिमलाई का मतलब है जिनका रिलेशनशिप अनसर्टेन है, यानी उनकी हम कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते, कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट हो सकता है ओव्यूल 5 हो सकता है, 10 हो, 1 हो, यानी अनसर्टेनिटी है, निश्चित नहीं है उनके कैरेक्टर्स। तो ये टोटल 14th सीरीज है, 14 सीरीज है टोटल। 3 सीरीज है थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी, TDC, ये पॉलीपेटली में है। 3 सीरीज है गैमोपेटली में, इन्हें भी। 8 सीरीज है मोनोक्लेमाइडी में, जहां पेटल्स होते ही नहीं या पेरियंथ कंडीशन होती है, तो CMMM, CM क्यूब लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर DAUO। तो कैसे भी कोई भी आप निमोनिक्स बनाए, मैंने बनाया हुआ है कि कलकत्ता मुझे मेरे दिल, कलकत्ता मुझे मेरे मुंबई, दिल्ली और यूनिवर्सिटी से ऑर्डिनरी लगा, कि कोई कलकत्ता घूमने गया होगा, उसको बहुत ऑर्डिनरी लगा, अपने वो मुंबई भी जा चुका, दिल्ली भी जा चुका, और
अपनी यूनिवर्सिटी से भी, ठीक है। तो इस तरह से ये 14 सीरीज हमने पढ़ी, सबसे बड़ी क्लास जो कि डायकोटिलिडन्स है। अब हम आते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और ये कैरेक्टर मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि कैरेक्टर जो होते हैं वो आपने जरूरी नहीं है लिखने जब आप क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रॉ करते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन दे रहे हैं 15 या 10 या 8 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव हो सकते हैं। अदरवाइज केवल क्लासिफिकेशन सिस्टम ड्रॉ करने के लिए बोला जाए 4 या इससे भी कम मार्क्स में, तो केवल हम सीरीज लिखकर छोड़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आती है, क्लास ना कि अब सब क्लास। जिम्नोस्पर्म्स, उसमें 3 ही ऑर्डर है। कॉनिफरेल्स जिसमें कॉनिफर्स आते हैं जैसे पाइनस, साइकाडेल्स जिसमें साइकस आते हैं सारे, साइकस बेडोमाई या साइकस जितने भी स्पीसीज हैं, और नीटेल्स जिसमें नीटम एफेड्रा ये सब आते हैं। अब आ जाते हैं मेन थर्ड क्लास पर, मोनोकोटिलिडनी। हालांकि मोनोकोटिलिडनी क्लास 1 डायकोटिलिडन से छोटी है क्योंकि इसमें 7 ही सीरीज है, उसमें 14 सीरीज थे, इसमें 34 ही फैमिलीज हैं। तो इन 7 सीरीज का भी हमें नाम याद रखना होता है। इसमें बहुत सारे सब क्लास नहीं है, इसलिए इसमें बहुत सारा झंझट नहीं है नाम याद रखने का। तो इसमें फर्दर 7 सब क्लासेस हैं, उनके लिए भी निमोनिक्स है मैकन एजी। देखिए इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मैकन था, उसके बाद एन और ए को आप रिप्लेस कर दें तो ये इस तरह बन सकता है मैका, यानी एन की बजाय ए आ गया और एन नीचे चला गया, मैका एन जी, मैका नहीं गया, ठीक है। मुस्लिम्स का एक हॉली प्लेस है मक्का मदीना जिसको मैका भी बोलते हैं, तो इसके लिए एक निमोनिक्स है कि भाई वो मैका नहीं गया, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो इसको मैकन एजी भी कर सकते हैं, मैकन एजी, या आप मैका नहीं गया इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं निमोनिक्स। तो यहां मैं लिख देता हूं इस निमोनिक्स को, मैकन एजी। ठीक है, अब इनके नाम लिख रहा हूँ वो आपने याद ही करने होते हैं। इसमें टोटल 7 सीरीज होती हैं, 34 फैमिलीज होती हैं। मोनोकोटिलिडन्स के कैरेक्टर क्या है आप जानते हैं, पैरेलल वेनिशन होती है, ठीक है, ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं। डायकोटिलिडन में पेंटामेरस फ्लावर है, रेटिकुलेट वेनिशन होती है, चाहे तो आप यहाँ भी कैरेक्टर दिखा सकते हैं, रेटिकुलेट वेनिशन, ठीक है। उसके अलावा पेंटामेरस फ्लावर 5 के होरल में होते हैं जनरली, यहाँ ट्राइमेरस 3 के होरल में होते हैं। जैसे लिलियसी है, प्याज की फैमिली, उसमें 3 ही पेटल, 3 ही सेपल, 3 स्टेमन, इस तरह से। वीट में भी 3 स्टेमन, 3 कार्पल। तो ट्राइमरस फ्लावर होते हैं जनरली, और पैरेलल वेनिशन होती है। तो मैकन एजी, इसके लिए फिर मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, माइक्रोस्पर्मी, ये इसकी पहली सीरीज है। सेकंड सीरीज है एपिगाइनी, फिर इसके कैरेक्टर भी हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद होती है कोरोनरी, फिर कैल्सी, कैल्सिनी, जैसे कोरोनरी ऐसे कैल्सिनी है, एक कोरोला के लिए कैलेक्स के लिए, यानी सेपल के लिए। न्यूडीफ्लोरी, ठीक है। नेक्स्ट एपोकार्पी और ग्लूमेसी। ये 7 सीरीज हैं मोनोकोटिलिडन्स के अंदर। 14 यानी 14 सीरीज थी डायकोटिलिडन्स के अंदर, जिनमें 165 फैमिली, 165 फैमिलीज थे, 25 ऑर्डर थे। उनको 3 सब क्लासेस में हमने पढ़ा था, 3+3+8। तो जहां पेटल्स नहीं थे वहां ज्यादा क्या थे, सीरीज थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां फैमिलीज ज्यादा थी, वहां सीरीज ज्यादा थी, बट फैमिली जो है वो पॉलीपेटली या गैमोपेटली में ही ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए माइक्रोस्पर्मी, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैल्सिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपिकार्पी, ग्लूमेसी, ये निमोनिक्स बन गया मैकन एजी। या आप इसको एन और ए को रिप्लेस भी कर सकते थे। इनके कैरेक्टर जल्दी से मैं डिस्कस कर देता हूँ। माइक्रोस्पर्मी में क्या होता है, जो स्पर्म्स या सीड के लिए कहा गया है, सीड्स बहुत छोटे होते हैं, ओवरी इंफीरियर, सीड्स माइन्यूट। जरूरी नहीं आप ओवरी इंफीरियर सुपीरियर याद रखें, जहां जरूरत है वहीं बताएं। इंफीरियर में आपको बताना पड़ेगा ओवरी इंफीरियर थी, यहाँ सीड्स माइन्यूट कह सकते हैं आप, स्पर्म जो है या सीड जो है वो माइन्यूट है। स्पर्म और सीड्स अलग अलग चीज होती है, बट यहाँ स्पर्म बोला गया है सीड्स को। एपिगाइनी जो है उसमें सीड्स लार्ज होते हैं, ठीक है, ओवरी इंफीरियर। एपिगाइनस, तो ओवरी तो इंफीरियर होगी भाई, और सीड्स लार्ज होते हैं। कोरोनरी में कोरोना, सॉरी नॉट कोरोना, कोरोला की बात की गई है, आजकल कोरोना चल रहा है तो वही याद रहता है। तो कोरोनरी में जो है पर्टिकुलरली कोरोला की बात की गई है, कोरोला यानी पेटल्स जो होते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, ओवरी सुपीरियर होती है,
उसके अलावा यहाँ पर पेरियंथ जो होता है वो कलर्ड होता है। देखिए पेरियंथ कंडीशन है, कोरोला यानी जो आपके पेटल्स और सेपल है उनको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन वो कलर्ड है, वो पेटल के जैसे होते हैं, तो इसलिए कोरोनरी बोल दिया गया। ठीक है, अगर पेरियंथ नेक्स्ट में पेरियंथ ग्रीन, अगर पेरियंथ सेपल के जैसा है, हालांकि सेपल पेटल अलग अलग नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड है, लेकिन अगर पेरियंथ खुद सेपल जैसा लग रहा है, डोमिनेंट सेपल है, तो कैल्सिनी है, ओवरी वही सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर। अगर वो कलर्ड है, पेटल के जैसा लग रहा है, तो कोरोनरी। ये फर्क है दोनों में। कैलेक्स, कैल्सिनी स्टैंड्स फॉर कैलेक्स यानी सेपल जैसे हैं पेरियंथ, और कोरोनरी मींस फिर कोरोला, दैट इज जो पेरियंथ है वो कोरोला के जैसे हैं यानी पेटल्स के जैसे हैं। न्यूडिफ्लोरी की बात करें तो यहाँ पर पेरियंथ एब्सेंट होता है, ओवरी सुपीरियर है। ओवरी सुपीरियर न्यूड होने का मतलब है पेरियंथ न्यूड है, पेरियंथ एब्सेंट, तो यहाँ पेरियंथ है ही नहीं। ठीक है, एपोकार्पी में जो होता है कार्पल्स मोर देन वन होते हैं और फ्री होते हैं, मोर देन वन कार्पल और फ्री। तो देखिए कार्पल हार्डली ही फ्री होते हैं, कार्पल जनरली फ्यूज ही होते हैं, जिसको सिम कार्पस कंडीशन कहते हैं। मान लीजिए ये एक दो कार्पल है, दोनों फ्यूज हैं, ये तीन कार्पल हैं, ये तीनों फ्यूज हैं, ये पांच कार्पल हैं, पांचों आपस में 1 2 3 4 फ्यूज हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कार्पस जो है वो फ्री है, तो उसको एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं, इसीलिए एपोकार्पी, एपोकार्पस, कार्पल्स फ्री। तो होगा कैसे, देखिए ये एक चैम्बर है, ये एक कार्पल, ये दूसरा कार्पल, ये तीसरा कार्पल, ये चौथा कार्पल, ये आपस में फ्री है। ये देखने को मिलता है रेननकुलेसी में। तो एपोकार्पी का मतलब कार्पल्स मोर देन वन है और फ्री है, मोर देन वन ही होंगे तभी फ्री होंगे, क्योंकि एक तो क्या फ्यूज होगा और क्या फ्री होगा, एक के लिए कुछ नहीं बोला जाता। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लूमेसी, अगर ग्लम्यूल ग्लम्यूल प्रेजेंट हो। ठीक है, एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर होती है, झिल्ली होती है ग्लम्यूल, अगर वो प्रेजेंट है ग्लूम्स फ्लावर के अंदर तो वो ग्लूमेसी फैमिली कहलाती है। तो यहाँ पेरियंथ रिड्यूस हो जाता है और ग्लूम प्रेजेंट होता है, ग्लूम प्रेजेंट। इस तरह से ये ओवरऑल व्यू है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम का। इसके मेरिट डीमेरिट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इनके जो नीचे कैरेक्टर्स मैंने लिखे थे वो साथ साथ आप वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या नोट्स के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं botany@gmail.com पर, आई विल गिव यू द पीडीएफ नोट्स। सो इस तरह से आपने पढ़ना है। एक ओवरव्यू जो है, दो तीन क्लासेस होते हैं, डाइकोटिलिडन, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडन, इनके सब क्लासेस और सीरीज तक आपको क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिफाइन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम।